Good morning, dear all student of class 12 Commerce. My name is Dr. Indermal Goyal and today we will discuss about one of the important method of accounting for joint venture business. Joint venture is a short-term partnership which is formed by a small group of persons to earn their living, and it may be established and operated for a specific object or for completion of a particular task or for a particular time period. So it will come to an end on accomplishment of a particular task, achievement of a predetermined goal, and on expiry of accounting entries for the joint bank method, or when separate set of book is maintained for joint venture. There are basically two methods of accounting for joint venture business. First one is when separate set of book is maintained for joint venture, and another one is when separate set of book is not maintained. When separate set of book is not maintained, that we will discuss later on in our next video. In this video, we will discuss about when separate set of book is maintained for joint venture business. In this case, and under this method, we prepare mainly three accounts, that is joint bank account, number 2, joint venture account, and number 3 is co-venture account. In my first video, I have explained you about the meaning of joint venture, characteristics of joint venture, difference between joint venture and partnership, and some part of methods of accounting for joint venture. So today in this video we will discuss the first method of joint venture. There are three methods of accounting for joint venture in total. The first one is separate set of book is not maintained, उसमें एक ही मेथड है, एंड सेकंड वन इज व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट मेंटेन, उसमें दो अलग अलग मेथड है. नंबर 1 है उसमें व्हेन ईच को-वेंचर रिकॉर्ड इज ओवर ट्रांजैक्शन, एंड नंबर 2 है ईच को-वेंचर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन. तो ये दो मेथड मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, और अभी इस वीडियो में हम सिर्फ जो है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर को एक्सप्लेन करेंगे. तो all the entrepreneurs who have no specific business, no specific partner for their business activities and economic activities, then they are called as co-venturer, and their transactions are recorded in appropriate books as and when they have taken place. In the first method, all the co-venturers mutually decide to record all the transactions in separate set of book. When separate set of book is maintained, in that case all co-venturers contribute certain amount as his capital, which is deposited in the joint bank account. So, joint bank account is prepared to record all cash transactions related to joint venture business, and this method is totally based on double entry system of accounting. So, for every transaction, we will apply the rule of the dual aspect concept, and we will make the posting of every transaction simultaneously while recording the transactions of that joint venture business. So in joint bank account, we will write all the receipts
in its debit side. Bank account is a personal account, and the rule of personal account will be applicable for recording all cash transaction, and the rule is डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर हम रुपए बैंक में जमा कराएंगे, बैंक विल बी रिसीवर, वी विल डेबिट द बैंक अकाउंट. तो इन बैंक अकाउंट वी विल रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट ऑफ द बिजनेस. और रिसिप्ट क्या होगी? सबसे पहला जो उन्होंने कैपिटल लगाई सारी को वेंचर ने, दूसरा जो उन्होंने माल बेचा वो पैसे कैश में आएंगे, वो बैंक अकाउंट में जमा होंगे, और क्रेडिट में क्या आएंगे? सारे पेमेंट आएंगे. और जो पेमेंट होंगे दैट विल बी रिगार्डिंग परचेज ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनली द पेमेंट टू ऑल द को-वेंचरर्स. या जॉइंट बैंक अकाउंट बनाने के बाद में दूसरा अकाउंट जो बनाएंगे वो जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा. एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट इज लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इन इट्स डेबिट साइड वी विल रिकॉर्ड ऑल द परचेज एंड ऑल एक्सपेंसेज रिलेटेड टू जॉइंट वेंचर बिजनेस. इन इट्स क्रेडिट साइड वी विल राइट सेल ऑफ गुड्स एंड closing stock, which will be generally taken by the co-venturer at an agreed value. So the difference between debit and credit side total of the joint venture account after recording all transaction will be profit or loss that will be shared by all the co-venturers at their agreed ratio. The third one is co-venturer account. Co-venturer account is just like a partner's capital account. In its credit side, we will write all those items which are payable to the co-venturer from the joint venture business. And in its debit side, we will write all those items which are chargeable from the co-venturer. So it is exactly equal to the partner's account. Now there will be transactions related to joint venture business under separate set of book, and transactions are logical and chronological in order. तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जब किसी बिजनेस को शुरू किया जाता है तो क्या होगा? फिर नंबर 1 फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 1 फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल बाय द को-वेंचरर. What will be journal entry? The capital contributed by the partner will be deposited in their joint bank account. Preparing all the students come down. All the students come down. The entry will be joint bank account debit to co-venturers account, being amount deposited in bank. See, फिर second entry for purchase of goods. When the goods will be purchased, then the payment will be made out of the joint bank account. For purchase of goods, the entry will be joint venture. The purchase of goods is for business, and it will be expensive for the joint venture business, and all expenses are to be debited to joint venture account. So the second entry for purchase of goods will be joint venture account debit to joint bank account. अगर आपने ना कैश परचेज किया और अगर आपने उधार में खरीदा है तो joint venture account debit to creditors account या to suppliers. ये माल खरीदने पर एंट्री हो है. उसके बाद नंबर 3 for payment of expenses. When the expenses are paid on behalf of joint venture business, then the expenses are to be debited to joint venture account, and the debit will be out of the joint bank. So the entry will be joint venture account debit to joint bank account. Being expenses paid. एंट्री नंबर 4, अगर कोई को-वेंचरर अपने पास से बिजनेस में माल देता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय को-वेंचरर. अगर कोई को-वेंचरर संयुक्त साहसी अपना निजी माल जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए देता है, then he becomes the creditor for joint venture, and the entry will be
बीइंग गुड्स सप्लाइड बाय द कोवेंचर। तो ये जो है ना माल जो है रुपये पे बैंक में जमा करना, कैपिटल जमा करना, सेकंड एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स, थर्ड एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फोर्थ एंट्री फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कोवेंचर। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री है फॉर सेल ऑफ गुड्स। जब है ना जॉइंट वेंचर बिजनेस का माल है वो बेचा जाता है तो दैट विल बी एंट्री नंबर 5। तो फिफ्थ एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स। अगर जो बिजनेस का माल बेचा जाता है ना और वो कैश में बेचा जाता है तो जो रुपए मिलेंगे ना दैट विल बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट। और वो जॉइंट वेंचर बिजनेस का सेल्स है इसलिए हमारी एंट्री जो बनेगी वो होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। अगर उधार बेचा गया है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। बीइंग गुड्स सोल्ड। For sale of goods. फिर नंबर 6। अब जैसे हमने उधार माल खरीदा था तो हमने ना एंट्री करी थी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट अगर हम डिस्काउंट पे पे करें ना तब हमारा एंट्री बनेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। हेडिंग डाल देता हूं फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर और पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट जितना क्रेडिट का अमाउंट था और जो हमने जितना पेमेंट किया वो टू जॉइंट बैंक अकाउंट हो जाएगा। टू जॉइंट बैंक अकाउंट एक्चुअल अमाउंट पेड। और अगर हमने उनको डिस्काउंट पे पे करा तो उसको लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर। वो हमारी इनकम होगी। इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो टू जॉइंट वेंचर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं डिस्काउंट DISCT लिख देना, ठीक है। और पेमेंट टू क्रेडिटर ऐसे हमें देनदार से जो रुपया मिलेगा तब हमारा एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट जितना रुपया देनदार ने हमको दिया है। और अगर हमने उसको कोई डिस्काउंट दिया है तो हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। और जॉइंट वेंचर में डिस्काउंट की अमाउंट भी आ सकती है और कोई बैड डेट्स हो गया तब भी वो जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे बैड डेट्स और डेबिट होगा ये भी एंड टू डेटर्स अकाउंट हो जाएगा। सो दिस इज फॉर पेमेंट टू द पहला 6 एंट्री है फॉर पेमेंट टू द क्रेडिटर एंड 7th एंट्री जो है हमारी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। इसका हेडिंग हो जाएगा और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर being received from debtor। अब देखिए in case of joint venture all the co-venturer may agree to provide interest on capital to all the co-venturer। तो अगर co-venturer को interest on capital दिया जाता है तब हमारी एंट्री होगी वो joint venture बिजनेस के लिए क्या होगा एक्सपेंसिव होगा। तो हेडिंग हो जाएगा फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कौन लगा रहा है कोवेंचर। तो कोवेंचर के लिए इनकम होगी वो क्रेडिट करेंगे। ये सारी एंट्री हम जॉइंट वेंचर बिजनेस की बुक में बना रहे हैं एंड इट विल बी एक्सपेंडिचर फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस। सो द एंट्री विल बी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर। ऐसे अगर कोई सैलरी और कमीशन पेबल है किसी कोवेंचर को और सैलरी एंड कमीशन टू कोवेंचर और सैलरी एंड कमीशन टू कोवेंचर तो वो भी बिजनेस के लिए क्या होगा एक्सपेंसिव होगा और हमारी एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। जिस व्यक्ति को दिया गया है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर जिसका भी नाम हुआ है। और गुड सप्लाई बाय कोवेंचर हो गया। अब ऐसे देखो नेक्स्ट एंट्री नंबर 10 हो सकती है जो अनसोल्ड स्टॉक है व्हिच इज टेकन बाय द कोवेंचर। तब हमारी एंट्री बनेगी वो
हेडिंग डाल देता हूँ, फॉर अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय को-वेंचर, फॉर अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय को-वेंचर, ये हेडिंग है। अब को-वेंचर ने माल लिया है तो वो रिसीवर हो गया, तो डेबिट द रिसीवर का रूल अप्लाई होगा एंड द एंट्री विल बी को-वेंचर अकाउंट डेबिट, को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये अनसोल्ड स्टॉक के करके। तो ये जॉइंट बैंक और जॉइंट वेंचर रिलेटेड एंट्री और को वेंचर अकाउंट का नाम आया। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन वी विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट में बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये सारी एंट्रीज है। और फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में टोटल अगर ज्यादा हो और डेबिट में कम हो, इट विल रिजल्ट आउट प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द को वेंचर्स। तो एक बार एंट्री में आपको फिर से बता दूं, पहली एंट्री है फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल स्टार्ट मटेरियल, दूसरी एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स, उधार में खरीदा नकद में खरीदा, तीसरी एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस कैश में पेमेंट किया तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट वेंचर, चौथी एंट्री है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय को वेंचर, अगर कोई भी साथ से अपने पास से माल देता है तो जॉइंट वेंचर टू को वेंचर होगा। फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने रोकड़ में माल बेचा है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, उधार बेचा है तो डेटर अकाउंट डेबिट तो जॉइंट वेंचर होगा। फिर बाद में जो हमने उधार माल खरीदा उसका पेमेंट करेंगे तो फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर द एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, एंड अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो टू जॉइंट वेंचर हो जाएगा, जॉइंट वेंचर में बाई क्रेडिटर करके डिस्काउंट की अमाउंट लिखेंगे। फिर हमारा जो एंट्री है जो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जिन लोगों को हमने माल उधार बेचा था तो डेटर को डेबिट किया था, अब वो बाद में अगर रुपए देंगे ना तो अमाउंट रिसीव्ड होगा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट में जो रुपया हमने डिस्काउंट अलाउड किया या जो बैड डेट्स हो गया वो आएगा, एंड टू डेटर अकाउंट, इससे डेटर अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर को वेंचर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, जिस को वेंचर को ब्याज मिलेगा उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज पेबल, interest on capital is payable by the joint venture business to the co-venturer. So co-venturer account is to be credited and entry joint venture account debit to co-venturer account. अब अगर मान लो किसी co-venturer को सैलरी देनी है, कोई कमीशन देना है, फीस देनी है, तो वो हम बिजनेस से देंगे, बिजनेस का वो एक्सपेंसेस हो जाएगा, उस पर्टिकुलर co-venturer की इनकम हो जाएगी, एंड एंट्री विल बी joint venture account debit to co-venturer, उसका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में एंड ऑफ द ईयर और completion of the joint venture business, to wind up the joint venture business after 2-3 months और on achievement of the goal, तो हमारी एंट्री बनेगी जो माल बचा हुआ है ना वो कोई को वेंचरर ले लेता है या दोनों में बांट देते हैं, तो जिनको भी वो अनसोल्ड स्टॉक दिया जाएगा द एंट्री विल बी को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट एंट्री है, अगर हमारे को प्रॉफिट होता है तो फॉर प्रॉफिट ऑफ ऑन जॉइंट वेंचर, फॉर प्रॉफिट ऑन joint venture the entry will be joint venture account debit to co-venture, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट में करते हैं P&L एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यहाँ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पार्टनरशिप में हमने क्या किया था P&L एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यानी कि टू A B C उनको प्रॉफिट बांटा था, यहाँ पे भी वही, यहाँ पार्टनर P&L एप्लीकेशन की जगह हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचर being profit given to co-venture being profit distributed। और नेक्स्ट एंट्री हमारी, अगर हमें लॉस होता है जॉइंट वेंचर में तो वो लॉस को-वेंचर का लॉस होगा, और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर द एंट्री विल बी रिवर्स, दैट विल बी को-वेंचर अकाउंट डेबिट to joint venture account, राइट। और उसके बाद में वो फाइनल सेटलमेंट में हम जब पेमेंट करेंगे, वापस रिटर्न करेंगे मनी को वेंचर को, तो फॉर पेमेंट टू को वेंचर
in final settlement, in full या final settlement, तो in final settlement वो रुपए कहाँ से दिए जाएंगे? आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट। किसको दिए जा रहे हैं? को वेंचर अकाउंट डेबिट टू रिसीवर, एंट्री बनेगी को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। इसको ऐसा एंट्री साइन को करने के बाद में हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट का डेबिट क्रेडिट टोटल दोनों बंद हो जाएगा। एंट्री बनी को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक में आएगा बाय को वेंचर अकाउंट, और इन सारी एंट्रीज को लिखने के बाद में हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। उसकी दोनों तरफ की टोटल बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने ये जो है पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही रूप से किया है। So this is about the first method of accounting for joint venture business. It is based on the double entry system of accounting. The name of the method is when separate set of book is maintained for joint venture. और इसमें सबसे पहले को वेंचर सारे लोग हैं ना, वो एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोल देते हैं, उसमें सारे अपना कैपिटल का रुपया जमा करा देते हैं। तो इसलिए इसका नाम जॉइंट बैंक मेथड भी है, क्योंकि जॉइंट बैंक मेथड है ना, बाकी वाली जो दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ना जॉइंट वेंचर के, उनमें नहीं बनाया जाता है। सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस मेथड while going through the question. It will be given that the co-venturer decided to prepare separate books for joint venture. या तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा और या फिर लिखा होगा from the above information prepare joint bank account, joint venture account and co-venture account. तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग का पहला मेथड अप्लाई करना है। या तो पहला ही ट्रांजेक्शन हो जाता ना सीधा कि ABC डिसाइडेड टू स्टार्ट ए जॉइंट वेंचर एंड डिपॉजिटेड रुपीज सो एंड सो इनटू ए जॉइंट बैंक अकाउंट। तो सीधा पहला ट्रांजेक्शन से ही हमें पता लग जाता है कि ये सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन करना है यहाँ पे, और ये जॉइंट बैंक मेथड है, और यहाँ पे जो है जॉइंट बैंक अकाउंट के साथ फिर जॉइंट वेंचर एंड को वेंचर अकाउंट बनाना होगा। और या फिर क्वेश्चन के लास्ट में लिखते हैं कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर टू प्रिपेयर जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट। So this method is totally based on the double entry system of accounting, and for solution of the question based on the first method, you can go through the question. When you will go through the question, you just read one line and make the posting into concerned account. तो जर्नल एंट्रीज है वो सारी डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है, और जिन लोगों को जर्नल और लेजर अच्छी तरह से आता है उन लोगों को इस मेथड को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज सिमिलर टू पार्टनरशिप बिजनेस। यहाँ पे भी जो लोग 3-4 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं ना, उनको को वेंचरर बोला जाता है, जबकि वहाँ पार्टनरशिप वाले लोगों को पार्टनर्स बोला जाता है। यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके लिए P&L रेशियो होता है, और P&L रेशियो नहीं दिया तो वो इक्वली बांटा जाएगा। बस इसके लिए कोई एक्ट अलग से इंडिया में नहीं बना हुआ है। Whereas Partnership Act 1932 is applicable for establishment and operation and for winding up of the partnership business in India. तो ये पार्टनरशिप की तरह ही है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। It is a joint venture business. It is a short-term type partnership. It is based on objectives to be achieved and the time for which a particular business is established by a small group of person. इस मेथड में 3 या 4 या 5 व्यक्ति भी पार्टनर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जबकि पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, मैक्सिमम 50 मेंबर कैन कैरी ऑन द बिजनेस। तो वहाँ लिमिटेशन है, वहाँ एक्ट भी बना हुआ है। यहाँ जॉइंट वेंचर का कोई एक्ट नहीं है और कितने भी पार्टनर हो सकते हैं फर्स्ट वाले मेथड में। जो सेकंड मेथड है जिसमें सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट मेंटेन, तो उसमें अलग फीचर्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में आपको मैंने एंट्री समझाई है, और अगले वीडियो में जो है मैं इस मेथड पर बेस कोई क्वेश्चन करके बताऊंगा, जिसमें मैं एंट्री बोलूंगा, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, उसको मैं सीधा जो है ना कंसर्न लेजर अकाउंट है ना उसमें पोस्टिंग करके आपको वो समझाऊंगा। तो आई एम श्योर दैट यू गॉट द पॉइंट, एंड दिस इज अबाउट द फर्स्ट मेथड ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। वॉच द वीडियो and share this